Hey guys, hi, good evening, good evening actually. What's up? How is everyone? I hope everyone is doing good and all is well. Okay, sorry, I didn't start my video. Come on guys, quickly settle down. I hope if for everyone everything is working cool, all is well, all is amazing. Yes. Come on, where are people? Bacha party, where are you? I can see Amlan here. Hi beta. Good afternoon, everyone. Chalo, jaldi jaldi settle down and then we'll quickly pick up the pace and we'll start right where we stopped, है ना? जहाँ हम रुके थे वहीं से वापस शुरू करेंगे and we'll try to solve the remaining questions, है ना? जो भी बच गए थे questions वो solve कर लेंगे. My chat screen is downward, so whenever I look towards the down, that means I'm looking towards the chat screen. Swayam is here. Hi beta. Good evening. Come on guys, everyone. Jaldi jaldi अपने सारे दोस्तों को बुला लो. We are quickly going to start. Okay. So in that spirit, let us move towards. You already know this haircut. Oh no, I just had a bath some time back, so that's why it's not a haircut. Believe me, I want to get my haircut, but after some time. Okay. So guys, we already solve a lot of questions. हमने काफी questions solve कर लिए थे, right? And this was the last question that we had solved सुबह सुबह, है ना? ये आखिरी क्वेश्चन था जो हमने सुबह सॉल्व किया था. Plant scientists are worried about C4 crops such as corn, sugarcane, maize. So this is the last question and I hope you remember इसके पीछे का logic क्या था बेटा जी? Yeah, it's a water. It's water doing the trick. Otherwise, my hair goes everywhere in all the directions. So right now, it's the water doing the trick. Okay, so guys, I hope everyone remembers the answer to this question. Why and how did we justify this? इस question को हमने कैसे justify किया था? सबको याद होगा, right? याद है? C4 plants वो वैसे ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट कर लेते हैं, राइट? सो बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ भी रहा है तो उनके लिए इट वोंट बी अ बिग डील बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट्स, राइट? दे ऑलरेडी गो फॉर कैम साइकिल and then this Calvin cycle and hence they already are obtaining a lot of carbon. But C3 weeds जो है वो उनका जो रुबिस्को है उनके लिए रुबिस्को का प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि रुबिस्को आपका ऑक्सीजन भी लेता है, राइट? गुड इवनिंग साम्या. सो बेटा वी आर स्टार्टिंग राइट वेयर वी लेफ्ट. गाइस, टू की पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. आज 2 बजे हमने नीट बैच अनाउंस किया था, राइट? सो गाइस, ये नीट बैच जो है इसी का कंटिन्यूएशन है, राइट? मंडे को आई थिंक आई वुड बी एबल टू गिव यू अ ट्रैकर शीट जहां आप पिछले सारे सेशंस का ट्रैक रख सकते हैं, राइट? एंड अब से हम देखो क्लियर कट बाइफर्केशन आई गेस आपको पता है. यूट्यूब पर एनटीएससी इज टोटली टेकन केयर बाय आपका सौम्या मैम, राइट? और एनएसईबी एंड आईजेएसओ विल बी टेकन केयर बाय मी. ऐप पे आई थिंक सौम्या मैम के भी सेशंस चल रहे होंगे. आई डू नॉट नो अबाउट दैट राइट नाउ, बट ऐप पे जो हमारा सेशन है दैट इज एनटीएससी एंड आईजेएसओ ओनली. There will be a plus course being launched in the coming week which will also cater to the same course but in just a very organized manner. वो जैसे launch हो जाता है I'll keep you people in loop. ठीक है, आगे बढ़ें to the next question. Are we ready for the next question? Before I do that, I'll quickly talk about a few things. Guys, before I skip to the next question, I will quickly talk about a few things that first needs to talk about. You already know the timetable and everything, so I will not repeat it. I'll talk quickly about the plus subscription. बेटा दो तरह के सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक. When you have an Unacademy Plus subscription, you get access to unlimited courses and classes that are presently applicable for your grade. Again, the thing good about this is that there is much organized and there is very easy financing options available. आपको एक बार में कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता और आप जितना लंबा का सब्सक्रिप्शन लेते हो उतना ही ज्यादा you get it at a very discounted price. And if you add any teacher's code जो कि मेरा Sona 05 है, you get an extra 10% छूट. You already know about that. अब आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक में
प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, यू विल गेट ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस, बट उसके सिवा यू विल गेट पर्सनल कोचेस, ईच कोच वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड, there would be more Q&A practices, there would be a proper study tracker, there's a lot of tips and tricks working on. आइकॉनिक के प्राइसेस अब आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, that 24 and 12 months, and again the same 10% off is also applicable on iconic subscription. Now guys, these subscriptions get you access to a lot of courses, like जैसे अभी मैं बता रहा था अपने कोर्स के बारे में, वैसे ही काफी सारे लोग अपना अपना कोर्सेस ग्रुप में लॉन्च कर सकते हैं. सो मंजिल इज वन ऑफ द कोर्स ऑफ फाउंडेशन ओलंपियाड क्लास 9, महाराष्ट्र बोर्ड इज अनदर वन के लिए जुनून बैच लॉन्च हुआ था, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बैचेस यू कैन सी, और हर एक का फोकस अलग अलग है, राइट? क्लास 10 कोर्स फॉर जेई नीट, राइट? Okay, complete course for class 9, NSEJS and PRMO, foundation in Olympiad. So you can see that there's a lot of courses for different focuses. You can choose for any and all courses as per your focus. जो आपको करना है आप उसके बारे में choose कर सकते हैं. So you don't have to worry about कि सिर्फ एक ही कोर्स या एक से ज्यादा कोर्स, you can choose the courses according to you. And the mock test जो इस बार सुबह 12 बजे 12 जून को 10 बजे होगा, एंड आपका फाउंडेशन टेस्ट सीरीज, दीज टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट आपको एक तो अपने पीयर से इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट दे डू इज दे आल्सो हेल्प यू get amazing scholarship. So do check them out because they are very cool ways to do that, and because Unacademy offers a lot of advantages. You can take classes from anywhere, you can learn from the best educators, everything is available to you in recorded formats, video or PDF, right? So guys, that is why it's advantageous. So you can click subscribe now, and you can quickly use the code SONA05, and if you buy one or more subscriptions, a combo discount would be available for all of them. All right, so guys, do check them out. In sabhi cheezon ko check out zarur karna, and once you reach there, once you have any doubts, you can obviously ask a lot of people here. There will be a lot of people here who would be there to help you and take you through it. Okay? Okay, so now that we have done that, let me take you to the questions. I think we have answered questions. कहाँ तक? Just give me one quick moment so that I can figure out कहाँ तक questions आपने solve कर लिए थे. Yes, आपने यहाँ तक questions solve कर लिया था. My screen might hang for a moment. Do not worry, वो थोड़े देर में stabilize हो जाएगा जैसे ही मैं PPT बंद करूँगा. Okay. So guys, now the PPT is gone and now the Menti will open. Yes. Okay. सबको दिख रहा है Menti का स्क्रीन, and you can see the code upwards. आपको कोड भी ऊपर हो जा रहा है. In Menti बेटा, we'll be doing this in Menti. जैसे सुबह कर रहे थे वैसे ही होगा, but again सुबह जैसे हम आराम से flip करके कर पा रहे थे वैसे नहीं हो पाएगा, but again questions आपको सारे यहाँ पे दिखेंगे. ठीक है? Okay guys, everyone quickly log in, जल्दी से log in कर लो, कोड आपके ऊपर है. We are continuing with the same Menti जो हम सुबह पे जहाँ पे छोड़ा था, right? Okay guys, did everyone log into the Menti quiz? Should I start now? 88587334, the same code that was applicable in the morning. Yes, Menti is going to resume from the same place that you left. Guys, do remember to invite your friends because ये tough practice आपको सब जगह नहीं मिलेगा, right? चलो, moving ahead. ध्यान से इस पिक्चर को देखो. Do not try to rush. IBO इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का पेपर है 2015 का. Crassula helmsii is a successful aquatic plant. I will try to reduce myself in size. I'm so sorry, मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखा? Let me reduce myself in size. Go ahead guys, read the question and I will be reducing myself in size so that I do not block any stuff. Chalo. So Crassula helmsii is a successful aquatic plant with CAM photosynthesis in a cross factorial study. Cross factorial study का मतलब क्या होगा?
बेटा क्रॉस फैक्टोरियल स्टडी का क्या मतलब होगा गाइस? गाइस पहले इसको करना है. ओके आई कांट पॉइंट आउट. फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ो, फिर ग्राफ को पढ़ेंगे, एंड देन साइड में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चंस है. आई विल एक्सप्लेन यू, डू नॉट वरी बेटा. आई विल एक्सप्लेन यू एक एक करके कैसे करना है. पहले फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ो. ओके. Crassula helmsii is a successful aquatic plant with CAM photosynthesis. आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि ये लोग CAM photosynthesis करते हैं, यानी they accumulate carbon dioxide inside. इतना पता है ना बेटा? पढ़ा दिया है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? पढ़ा दिया है, क्वेश्चन कर रहे हैं आदित्य. इन अ क्रॉस फैक्टोरियल स्टडी का मतलब है कि हम दो या दो से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 2 लाइट लेवल्स. लाइट के 2 लेवल्स थे, लो लाइट हाई लाइट, LL HL. ठीक है, लो लाइट हाई लाइट, एंड 2 CO2 लेवल्स, लो कार्बन हाई कार्बन. ठीक है, LL HL LC HC. द CAM एक्टिविटी ऑफ C was measured. CAM की एक्टिविटी कितनी हुई वो भी मेजर किया गया, राइट? वाई एक्सिस पे एक्टिविटी है, एक्स एक्सिस पे फैक्टर्स है. LLLC LLHC. LLLC मतलब लो लाइट लो कार्बन, LLHC मतलब लो लाइट हाई कार्बन, HLLC मतलब हाई लाइट लो कार्बन, HLHC मतलब हाई लाइट हाई कार्बन. बिफोर आई गो टू मेकिंग यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, क्या पैराग्राफ और ग्राफ सबको समझ में आ गया? CAM is C4. हाँ बेटा जी, CAM is not C4. वेट, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ यार ऐसे. नो, CAM is not C4, but yes, CAM does operate. Sorry guys, I messed up. CAM is not C4, but CAM उस पाथवे का इस्तेमाल करता है. CAM separates it in time, रात और सुबह. C4 में सब कुछ सुबह होता है, but in different cells. Sorry guys, if I mixed it up, remember CAM और आपका C4 अलग अलग है. C4 में सब कुछ एक ही समय होता है, बस अलग साइकिल में. CAM में डेजर्ट प्लांट्स, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सुबह इस्तेमाल करेगा. ठीक है, या अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. मेरे सर के ठीक ऊपर यू हैव 4 स्टेटमेंट्स. यू हैव टू एडमिट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट. आपको हर एक स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स करना है. आपको चूज नहीं करना बेटा जी. यू डोंट हैव टू चूज. ओके गाइज, इज द क्वेश्चन क्लियर? आपको चूज नहीं करना बेटा. यू डोंट हैव टू चूज. व्हाई इज एक्वाटिक प्लांट डूइंग CAM साइकिल? इट्स नॉट अ डेजर्ट प्लांट. परहैप्स वहां पे टेम्परेचर का कोई प्रॉब्लम होगा बेटा, राइट? सो इवोल्यूशन प्लेज अ रोल, परहैप्स. ये आपको बता दिया गया है. सो राइट नाउ जनरली दिस हैपन इन मार्शी एरियाज में ऐसा होता है. ठीक है, सो आपको चारों स्टेटमेंट्स के लिए ट्रू या फॉल्स चूज करना है. एंड गाइज, आपको मार्क्स भी उसी तरह मिलते हैं. अगर आपके चारों स्टेटमेंट सही हैं, यू गेट द फुल मार्क्स. अगर आपके सिर्फ 3 स्टेटमेंट सही हैं, यू गेट द 3 मार्क्स. 2 स्टेटमेंट 2 मार्क्स, 1 स्टेटमेंट 1 मार्क्स, नो स्टेटमेंट 0 मार्क्स. ठीक है, ऑफिशियल IBO में ऐसे ही होता है. ओके, नाउ लेट अस इवैल्यूएट क्वेश्चंस वन बाय वन. CAM seems to be an adaptation to survive in waters rich in carbon. What do you think बेटा? आपको क्या लगता है? Can you agree with this statement just by looking at the graph? बेटा आएंगे, रुक जाओ, अभी रुक जाओ. अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा. CAM seems to be an adaptation to survive in waters rich in carbon. ऐसा लग रहा है आपको कि हाई कार्बन में CAM एक एडेप्टेशन की तरह आ रहा है? सो अम्लान सेज नो. व्हाट अबाउट अदर्स? सो अम्लान का नो आया है. व्हाट अबाउट अदर्स? से यस और नो एंड एक्सप्लेन. बेटा आपको यस और नो चैट में लिखना है और एक्सप्लेनेशन के साथ. अम्लान सेज नो एंड ही गिव्स द रीजन बिकॉज LLHC इज लो. ओके, नेक्स्ट अदर्स. गाइज, आप सभी को इंटरैक्ट करना है. आफ्टर ऑल व्हाट इज हियर टू लूज? अगर हम कर पाए तो सीखेंगे. आई डोंट वांट कि सिर्फ एक बच्चा रिप्लाई करे, मैं चाहता हूं सभी करे बेटा.
कम ऑन गाइस, सिर्फ मेंटी, इसमें कोई क्विज नहीं आने वाला. यू हैव टू रिप्लाई इन द चैट. देयर वोंट बी एनी क्विज. यस बेटा, इट्स नेगेटिव. I'll come to that. Amlan, I'll come to that. रुक जाओ बेटा. Guys, others, so can you repeat? Samyak, the first statement, you have 4 statements बेटा. आपको हर एक स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स करना है, या तो वो ट्रू है या तो फॉल्स है, एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, कैम सीम्स टू बी एन अडेप्टेशन. ग्राफ देख के आपको डिसाइड करना है, डू यू थिंक इट्स एन अडेप्टेशन और नो. व्हाई यस, व्हाई नो, क्यों हां क्यों ना, आपको जस्टिफाई करना है. कम ऑन गाइस, यू हैव टू जस्टिफाई योर चॉइसेस एज वेल. कोई डरने का बात नहीं है, कोई यहां पे मार्क्स नहीं काट रहा. आप कोशिश करो, राइट वॉट एवर यू थिंक इज करेक्ट. गाइज, इफ यू आर वेटिंग फॉर अ मेंटी, देयर वोंट बी एनी मेंटी राइट नाउ. मतलब क्विज होगा बट बाद में होगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला. So I would really ask you to participate rather than sit and wait for mentee. अगर कोई mentee के लिए वेट कर रहा है बेटा, don't do that. ठीक है, बिकॉज मुझे सिर्फ 3 लोग 4 लोग दिख रहे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, और इन 3-4 के जगह कोई नहीं कर रहा. नॉट फेयर, राइट? Samyak, Samyak, our explanations have to be based on graph. हमारे एक्सप्लेनेशंस ग्राफ डेटा पे बेस्ड होने चाहिए बेटा, प्री रिक्विजिट नॉलेज पे नहीं, है ना. क्वेश्चन ने बोल दिया है बेटा, दिस इज अ कैम फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन हैज ऑलरेडी सेड दिस इज अ कैम फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग यू टू रीड द पैराग्राफ, look at the graph and then judge the statements. Question is not asking you to bring the pre-existing knowledge बेटा, because बहुत बार कोई exception हो सकता है, आपको थोड़ी ना पता बेटा, you don't know, है ना. कोई चीज जो आपने नहीं पढ़ा हो, that is the beauty of IBO or IJSO. They will not ask you to ratify anything. Okay, let's discuss this. Question कह रहा है, CAM seems to be an adaptation in waters rich in carbon. अब LLHC में जो है, हाई कार्बन में ऐसा कुछ भी नहीं है. हाई कार्बन होने के बावजूद, इवन दो देयर इज हाई कार्बन कंटेंट, वी डोंट सी अ लॉट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैपनिंग. नाउ दिस इज एक्चुअली जस्टिफाइड, राइट. ये जस्टिफाई हो सकता है कि हाई कार्बन होने के वजह भी ऐसा क्यों नहीं है, राइट. It's not an adaptation to overtake high carbon. It might be an adaptation to something else, but we cannot justify it using the graph. Whatever is written, but that is a credit. वो credit है. मतलब whenever we use these graphs, we always have to give credit to the author. तो वो research paper है, उसको टेंशन मत लीजिए, इसीलिए वो छोटा है. ठीक है. Coming to the second statement. The circadian stomatal opening rhythm of CAM plant enables them to take up CO2 at night time. What is circadian? Circadian means something that follows a cycle. Do you think that circadian stomatal opening of CAM plants enable them to take more CO2? क्या आपको लगता है? Do you agree by looking at the data? By looking at the data, do you agree that yes, there is a cyclic opening of stomata that allows them to take carbon at the high light intensity? Yes, right. We know this is a true statement. तो पहला false, second true. Third, CAM increases night time photorespiration. कैम जो है नाइट टाइम का फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देता है. डू यू थिंक? फोटो रेस्पिरेशन क्या आपको लगता है कि नाइट में इंक्रीज हो जाएगा? रिमेंबर व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन कॉज ड्यू टू रुबिस्को एक्टिविटी, राइट? नो, वी कांट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि CAM on the other way arrests the carbon dioxide. It does not allow it for respiration. वो
रेस्पिरेशन नहीं होने देगा, राइट? क्योंकि हमको याद है जो बंडल शीथ सेल्स से दे आर सील्ड अवे, है ना? At LL there is a dry matter, less dry matter production because CAM plants also require light for photosynthesis. LL में dry matter कम है because CAM plants they require light for photosynthesis. Do you agree with the last statement? Guys, do you agree with the last statement? Dry matter, अगर आप पानी निकाल लो तो हो सकता है कि there is not enough photosynthesis happening, बस पानी बहुत ज़्यादा accumulate हो गया है. That could make something heavy, some plant heavy. इसीलिए क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है ड्राई मैटर, दैट द वेट दैट वाज मेजर्ड इज नॉट ड्यू टू पानी, इट्स ड्यू टू कार्बन. यस गाइस, डू यू अग्री और डिसअग्री टू द लास्ट स्टेटमेंट? क्या आप लास्ट स्टेटमेंट से अग्री या डिसअग्री करते हैं? Guys, come on. Okay, I think disagree. Very good. So guys, low light पे definitely there is less dry matter. क्योंकि देखो एक चीज तो है, there are two processes happening at the same time, respiration and photosynthesis. अगर आप लाइट नहीं दोगे तो there is no assimilatory power, right? There is no assimilatory power, right? No assimilatory power मतलब कितना ही कार्बन ले आओ, right? No matter how much carbon you bring, there won't be any carbohydrate production, right बेटा जी? So इसीलिए आपको जो एक्टिविटी है वो निगेटिव दिख रहा है, राइट? बेसिकली हम कैम एक्टिविटी को मेजर्ड कैसे करते हैं? बाय मेजरिंग द ड्राई मैटर, राइट? सो द ड्राई मैटर प्रोडक्शन गोज निगेटिव, यानी आई एम गिविंग आउट मोर कार्बन देन आई एम कंज्यूमिंग, right? I am giving out more carbon, I am respiring more than I am consuming. Clear है बेटा जी? So are you now versed in how do you solve IBO problems? क्या अब आपके लिए क्लियर है कि IBO के प्रॉब्लम्स हमें किस तरह के मिलेंगे और कैसे सॉल्व करने हैं? बेटा लास्ट वन इज ट्रू, लास्ट वन इज ट्रू. ओके, लास्ट वन इज ट्रू. क्यों? क्योंकि जो भी दोनों लो लाइट कंडीशन था, दोनों में ही कैम बहुत ही कम हुआ. जो दोनों ही कार्बन लो लाइट कंडीशन से दोनों में कैम की एक्टिविटी कम थी, जो लो लाइट लो कार्बन थी उसमें तो नेगेटिव ही चली गई, इसीलिए. ओके, सो गाइज आपको आईबीओ में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. फ्यूचर क्वेश्चंस विल इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स. ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आईजेएसओ का क्वेश्चन है गाइस. Leaves have air spaces in between mesophyll cells as opposed to being completely occupied by cells of water. How are the air spaces used for CO2 का diffusion? After this question, Amlan, after this question. Guys, do call your friends and other, classmates as well. Tell them about this amazing coursework that we have launched. But again, this also requires hard work. So do pass it on that this does require hard work. Okay. Okay, the screen passed. And why? Okay, I need to show you questions as well. Let me open questions. Just give me one moment, beta. Let me quickly open questions because I did not. This is F10 photosynthesis practice. Just give me one quick moment.
Just give me one moment, beta. Come on. तब तक I will quickly modify this. The correct answer is D. Okay, chalo, I have the questions. Okay, so leaves have air spaces inside them. So first reason दिया गया था, they increase the area for CO2 absorption. Now you know that this is true, right? आपको पता है that this is perfectly true. Guys, let's do one thing. Let's do all of this in PPT because I don't want you to miss out on the questions. It's very important कि आपको questions दिख रहा हो, वरना explanation will not make sense. Right? So I'm going to switch off Menti and switch back PPT. Just give me one quick moment. Polls are not important if we don't understand it. ठीक है. ठीक है. Okay, cool. Now let me close this. All good? Yes. Okay guys. So they increase surface area for carbon dioxide absorption. अगर cells ऐसे stacked होते, अगर हमारे cells ऐसे stacked होते, right? तो जो surface area था, the net surface area would have been only the blue line, green line, right? जो surface area of absorption होता वो बस इतना होता. But क्योंकि आपका spongy parenchyma is a lot more having gaseous spaces in between them, आप देख पा रहे हो by using the same 6 cells. मैंने अभी भी 6 सेल ही इस्तेमाल किया, right? But by using the same 6 cells, you have increased the surface area greatly. आपने surface area बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, right? So they increase the surface area definitely. Allow for faster diffusion. Diffusion is always faster in gases than liquids than solids, right? तो क्योंकि gases हैं, they are not filled with water, they are empty air gaps, right? इसके बीच में जो है ये क्या है बेटा? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है. This is an air gap, right? This is an air gap. So obviously faster respiration. अगर नहीं होता, so what is green line? Beta surface area. Thank you Amlan for answering beta. If there were no air spaces between the cells, the amount of CO2 would be the rate limiting factor. बिल्कुल सही, क्योंकि तब supply of CO2 would have been decreased very less, right? तो correct answer होगा बेटा D, right? Correct answer फिर होगा D. ठीक है, चलो. Moving on to over to the next question. This question has been picked from Cambridge. ये Cambridge से pick हुआ पड़ा है, ठीक है? Apparatus shown was used in an experiment. आपके सामने एक apparatus है. The carbon dioxide content of the water in each test tube was measured at the start of the experiment and again 3 hours later. 3 घंटे बाद और के अंतराल में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन मेजर किया है. You will have to think किस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, right? You have 1 minute to answer in the chat box, guys. You have 1 minute to answer in the chat box. Okay, I've received answer from Samyak, so I'm going to write your answers here. So Samyak, your SA, right? Samyak says C. Amlan says also C. Okay, my Siri gets activated for no reason. Guys, others, Kavita says B. So Kavita, you are KA. Kavita says B. Okay, others, guys, सभी लोग participate करो.
The more you discuss, the better that it will be. You have 1 minute. So there was NSO workbooks also. NSO is National Science Olympiad ना बेटा, उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे, बट उसका लेवल इससे मैच नहीं करने वाला बेटा, वो इससे काफी, नॉट काफी, बट वो NTSE के लेवल का ही होता है, NTSE से थोड़ा ज्यादा। चलो, स्वयं सेज बी, सो आई हैव 50-50, मेरे पास 50-50 हो चुका है। ओके, लेट्स ट्राई टू इवैल्यूएट। वंस अगेन लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था कि हमारा डिक्रीज कहां होगा, राइट? वी वांट टू फॉलो द डिक्रीज। ओके, black polythene to keep out the light. Black polythene to keep out the light. That means there is no photosynthesis happening. Photosynthesis will not take place in A and in B, right? है ना? Photosynthesis नहीं होगा A और B में, right? D में तो कुछ है ही नहीं, D में there is no plant. So the carbon dioxide level in D will remain same. It will not change because there is nothing to change it. अब C में photosynthesis हो रहा है बेटा, right? At C we are photosynthesis is happening, तो carbon dioxide concentration क्या होगा? Decrease होगा. Why? Because photosynthesis consumes carbon, right? Photosynthesis consumes carbon. Okay, now A and B में there is no photosynthesis happening, only respiration is going to happen, right? Only respiration is going to happen. But हमने एक चीज को ध्यान देना था, aquatic animal. Aquatic animal will give CO2. तो हम ये नहीं कह सकते कि this is same. We have to say this also decreases. क्योंकि sorry, increases not decreases, increases, क्योंकि aquatic animal क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा. सो CO2 इसमें इंक्रीज करेगा, CO2 इसमें डिक्रीज करेगा, इसमें CO2 वुड रिमेन थोड़ा सा सिमिलर. क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, राइट? इसमें CO2 इंक्रीज करेगा. ओके, सो वी हैव 4 टेस्ट ट्यूब्स and 3 different observations. ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब, 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन. क्लियर है? ओके, आगे बढ़े. ओके, इस क्वेश्चन फिर से आईबीओ का क्वेश्चन है, घबराना नहीं है. डू नॉट गेट यू नो, इन एनी केस डू नॉट गेट टेंशन में. नाउ फर्स्ट, इज देयर एनी पार्ट दैट इज नॉट विजिबल? कोई ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल नहीं दिख रहा? प्लांट विल ऑल्सो डू रेस्पिरेशन. बेटा नेट ज्यादा क्या हो रहा था? नेट फोटोसिंथेसिस लिया जा रहा था. नेट ज्यादातर केसेस में नेट फोटोसिंथेसिस लिया जा रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑर्गेनिज्म इज गिविंग आउट, तो थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा. सो लीस्ट डिफरेंस कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं लीस्ट डिफरेंस. सिमिलर इसलिए बोला. ओके, नाउ गाइज रीड एंड एक्सप्लेन इट टू मी. आप पढ़ के मुझे समझाइए कि सर ये क्या है. यू टेल मी व्हाट डू यू एक्सप्लेन, सॉरी अंडरस्टैंड बाय दिस. ये 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसको क्वालिफाई करना है, सेम ट्रू एंड फॉल्स. ओके, सो रीड एंड देन एक्सप्लेन टू मी ऑल अबाउट दिस. ठीक है, आराम से, देयर इज नो हड़बड़ी, वी हैव कंप्लीट आवर, no hurry, आराम से read it and then explain to me. A is not covered. बेटा A क्या है? And while you are reading, if you have already solved, you can also give me answers for each of these. कैसे आंसर लिखोगे? 1T 2T 3F 4F. आप ऐसे आंसर्स एक सिंगल मैसेज में लिख के भेज सकते हैं. इफ यू हैव कंप्लीटली सॉल्व्ड इट, सो यू कैन राइट 1T 2T 3F 4F, जो भी आपका आंसर है, अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो.
नहीं सॉल्व कर चुके सर? इन लास्ट वन Samyak, I couldn't get what you want to say. So in last one, acha, okay. Wait, guys. Oh yes, it's not covered by photo. It's not covered by polythene. Yeah, thank you so much, Samyak, for reminding that. It's not covered by polythene. That means no CO2 production, only release. So CO2 will increase. Last वाले में भी CO2 increase होगा. Great observation. Yes, I missed that. Great observation. Very good. Great. Wow, this is good. ये मजेदार चीज है. Very good. Yeah, I missed that कि वो covered है. Okay, so do I have some explanation from you people regarding this? क्या ये question हमने समझ लिया है? This 4 of people in the chat box, guys. The relationship between light intensity को हमने x axis पे किया है, okay? And the net photosynthesis rate. Net photosynthesis को, sir, I don't think A was covered, बेटा. It was A covered था. ये देखो, A covered है बेटा, A covered था, ठीक है? What is PR? Photosynthetically active radiation. ऐसा रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, मतलब 400 to 700, ठीक है? 400 to 700. चलो, सो हमने PAR दिया, यानी रेडिएशन स्लाइड दिए, और NPR फोटोसिंथेसिस को मेजर किया. नाउ बिफोर यू गो अहेड, आई वांट यू टू लुक वेरी क्लोजली ऑन टू दिस यूनिट. शायद आप ये यूनिट पढ़ नहीं पा रहे, इसीलिए आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड इट आउट टू यू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Micromoles oxygen per milligram of chlorophyll per hour. This is not visible, that is why I am reading it, and it's very important that you understand this. Micromoles of oxygen, we are measuring rate of photosynthesis by oxygen liberation. कितना oxygen release हो रहा है, and how are we calculating that? हमने leaf का chlorophyll content भी calculate किया और divide कर दिया कि पर ग्राम ऑफ क्लोरोफिल पर घंटे मुझे कितना ऑक्सीजन मिल रहा है. ओके, माइक्रोमोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर mg क्लोरोफिल पर आवर. ओके, नाउ मेजरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस वर टेकन. यहां भी लिखा हुआ था सेम चीज. वे मेड ऑन द प्लांट्स विद शैलो वाटर एंड डीप वाटर इन अप्रैल एंड जुलाई. शैलो वाटर में, डीप वाटर में, अप्रैल में और जुलाई में, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू अटैक द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. सॉरी, शैलो वाटर प्लांट्स हैव हायर एनपीआर एट 100 पार. 100 पार क्या है बेटा? ये दिस इज 100 पार, राइट? शैलो वाटर प्लांट्स को कैसे डिनोट किया गया है? ब्लू, सॉरी, रेड कलर से. Shallow water plants have higher NPR or lower NPR? बेटा 0.5 मीटर डेप्थ, देखो ऊपर लिखा हुआ है बेटा डेप्थ, राइट? डीप वाटर एंड शैलो वाटर. शैलो वाटर मतलब ब्लू, सॉरी रेड, एंड डीप वाटर मतलब ब्लू. ओके, सो शैलो वाटर प्लांट्स में NPR 100 पर ज्यादा है, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है. डू यू अग्री और डिसअग्री? डू यू अग्री और डिसअग्री? वेरी गुड. आई हैव आंसर्स फ्रॉम सम्यक. सम्यक सेज नो. अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स बेटा? व्हाट अबाउट अदर्स? सो सम्यक सेज डिसअग्री. गाइज, आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिप्लाई. बेटा सभी सोचो. इट्स रीडिंग अ ग्राफ. अमलान सेज नो. Nirvan says no as well. So yes, we can clearly see कि 100 पार पे shallow water plants are doing good. Shallow water plants are doing good. Now, who can justify this?
Why are shallow water plants doing good in low sunlight? Why are shallow water plants doing better photosynthesis in less sunlight? Can someone justify this? Beta? Yes, I want explanation. Why are shallow water plants doing better? Because they are closer to the surface. They have more sunlight, beta ji. They are closer to the surface. They have more sunlight. पानी, water, जैसे आप depth में जाओगे, the amount of sunlight that reaches gets lesser and lesser and lesser, right? So the main reason is shallow water plants are doing better because there is less sunlight. There will be more carbon dioxide, but also there would be more competition, beta. दूसरा रीजन ये है, yes, there would be more carbon dioxide, but there would also be more competition. तो वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा, right? बिल्कुल सही बात है कि सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होगा, बट बेटा जी सरफेस पे कंपटीशन भी ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा सनलाइट है, ठीक है? सो वी हैव लॉक्ड द आंसर. Okay, that's correct. Now let's go to the second question. Deep water plants have higher NPR in July. Let me erase these markings ताकि आप नेक्स्ट देख पाओ. सो अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज आस्किंग कि डीप वाटर प्लांट्स, डीप वाटर का मतलब क्या है? ब्लू वाले. ब्लू प्लांट्स हैव हायर एनपीआर इन जुलाई देन इन अप्रैल. जुलाई इज स्टार, अप्रैल इज अ डॉट. कम ऑन गाइज, गिव योर आंसर्स एंड जस्टिफिकेशन. Please zoom. Abhi beta, I will be zooming. Just guys, can you see it now? Can you see it now? बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा. डीप वाटर प्लांट्स हैव हायर एनपीआर इन जुलाई देन इन अप्रैल. जुलाई और अप्रैल, राइट? जुलाई देन इन अप्रैल कहना चाहता है कि डीप वाटर में जुलाई में ज्यादा है, अप्रैल में कम है. ओके, सो जब भी बेटा ओके गुड. सो गाइज, हाउ डू वी फाइंड आउट? हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम अप्रैल और जुलाई के प्लॉट्स को देखेंगे, राइट? अप्रैल और जुलाई के प्लॉट्स को देखेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि सारे डॉट्स अप्रैल हैं. लेट अस कनेक्ट द डॉट्स. सारे डॉट्स बेटा अप्रैल हैं. So if I connect all the dots or at least 2 dots, somewhat like that. Now I am going to use another color for this one. मैंने किसको कनेक्ट किया? जुलाई का नहीं, मैंने डॉट को कनेक्ट, अप्रैल को. अब जुलाई को कनेक्ट करते हैं. So we see there is no conclusive difference. हम कॉन्क्लूसिवली नहीं बोल सकते, राइट? जब तक हम कॉन्क्लूसिवली नहीं बोलेंगे वी विल हैव टू चूज फॉल्स. कॉन्क्लूसिवली नहीं बोल सकते. डिफरेंस जो है वो यूनिफॉर्मली हमें नहीं दिख रहा, ठीक है? सो वी विल से फॉल्स. नेक्स्ट क्या है? इन द एक्सपेरिमेंट एनपीआर इज लाइट लिमिटेड. How do you respond to the last statement which says NPR is light limited? How do you respond to this statement which says NPR is light limited? Just एक मिनट बेटा. I think I forgot to send the notification in the group and I'll just do that. How do you respond to this? In the experiment, NPR is light limited.
NPR इज नेट फोटोसिंथेसिस रेट. कैसे मेजर किया बेटा? कितना ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, दैट इज हाउ वी आर मेजरिंग इट. ओके, NPR इज नेट फोटोसिंथेसिस रेट. चलो, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग सो दैट मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो. ठीक है. यस गाइस, कम ऑन. NPR लाइट लिमिटेड है. क्या आपको ऐसा लग रहा है? दैट मीन्स इट इज लिमिटेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट. बेटा लिमिटिंग रिएजेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो. लिमिटिंग रिएजेंट इज समथिंग जिसके कम होने से द रिएक्शन वुड सॉर्ट ऑफ स्टॉप. राइट, राइट. This is not an exact definition but for our purposes. So we see जब हमने PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को जीरो कर दिया तो हर एक केसेस में द फोटोसिंथेसिस रेट, द NPR got down to 0. Right? It got down less than even 0 हर एक केस में. So we can very confidence के साथ हम कह सकते हैं that it is true. राइट, हर एक केस में इट गॉट बिलो देन 0. जैसे ही हमने जीरो किया लाइट, जैसे हमने लाइट जीरो किया, इट वेंट बिलो 0. राइट, वेरी गुड. Deep water plants have a higher NPR because of their higher chlorophyll content. Deep water plants के पास higher NPR है. Now can we agree that deep water plants have a higher NPR? देखो 2.2 को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. Do you think deep water plants have a higher NPR? Okay, guys, in the beginning of this question I explained you one thing कि मैंने NPR कैसे कैलकुलेट किया. माइक्रोमोल्स ऑफ ऑक्सीजन पर mg क्लोरोफिल. ओके, मैंने NPR कैसे कैलकुलेट किया? माइक्रोमोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट वाज माय मिक्सिंग, पर mg ऑफ क्लोरोफिल. यानी आई नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ क्लोरोफिल. अगर हमने अलग अलग पत्तों को उठाया था तो हमने डिवाइड कर दिया बाय क्लोरोफिल कंटेंट. सो इट इज पर ग्राम क्लोरोफिल. राइट, सो दैट मीन्स chlorophyll here does not become a factor in our results. Right, so deep water plants के का chlorophyll के content से असर पड़ रहा है, we cannot say because our diagram very clearly says per mg chlorophyll. But you have to think why. शैलो पानी में सनलाइट भले ही कम मिलेगा बट शैलो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिलेगा. ओके सर, why does the graph of deep water plants, deep water is that stop बेटा सोचो सम्यक. आप पानी में you are flashing light, you know water will distribute light. तो एक समय के बाद आप कितना भी इंटेंसिटी दे दो, it will not reach much, it will not be much. राइट, ओके, इट विल नॉट बी मच. सो बट हमारे पास डेटा भी नहीं है. राइट, हमारे पास फोटोसिंथेसिस का डेटा भी नहीं है, वरना डेटा यहां पे होना चाहिए. राइट, बट वी डोंट हैव द डेटा. अगर उन्होंने PAR बढ़ा करके डेटा लिया होता तो इट शुड हैव बीन 0, अगर वैसा लॉजिक है तो. बट यहां हम कंक्लूड नहीं कर सकते. बट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन दैट आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट विल डिक्लाइन. ठीक है ना. दूसरा चीज बेटा जी, शैलो वाटर में CO2 कम होगा. क्यों? बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन. बट डीप वाटर में देयर विल बी अ लॉट ऑफ CO2. व्हाई? डीप वाटर में जनरली एनिमल्स होंगे, एनिमल सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं. राइट, तो इसीलिए वहां पे CO2 कंसेंट्रेशन वुड बी हायर. क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
Yes? Okay, cool. Moving over to the next. This is pretty simple question. ये काफी simple question है. Okay, so this graph is obtained from nasa.gov. ये NASA से उठाया हुआ ग्राफ है, ठीक है. इसमें हम क्या दिखा रहे हैं? We are showing how much light do we receive from sun, जिसको हम कहते हैं solar irradiance, and we are showing the temperature. Okay, temperature of the earth. Oh yes, thank you so much. Thank you so much for reminding. I'll just move to the left. Sorry. Okay. Okay. How is photos? Beta, we flash lights from 400 to 700. Simply white light है बेटा. उसको scientifically हम ये नहीं कह सकते ना simply कि white light दिया. Scientifically आप बोलोगे PAR दिया, यानी white light दिया, photosynthetically active radiation, है ना. Scientifically आप नहीं कह सकते कि white light दिया. Scientifically you have to define that you gave light between 400 to 700 nanometers, जो photosynthesis में काम आता है, right? जब हम scientific papers लिखते हैं बेटा, we can't use words that are ambiguous. We have to be specific. इसीलिए उसको PAR क्या है, ठीक है? Okay? चलो. Guys, I have 4 options. आपको सिंपल ग्राफ को पढ़ना है. वेरी इजी क्वेश्चन. यू हैव टू सिंपली रीड द ग्राफ. सर, सो इन व्हाट यू इफ वाज सर, सो इन व्हाट यूनिट इट वाज द एक्स एक्सिस मेजर्ड? बेटा वेवलेंथ. वेवलेंथ बेटा. सत्यम, व्हाई नॉट अपलोड रिकॉर्डेड? बेटा आई डू अपलोड रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव. रिकॉर्डेड की वॉल्यूम बहुत कम होती है. ओके चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज कांस्टेंट? आपके हिसाब से कांस्टेंट कौन है? अर्थ टेम्परेचर, सन्स एक्टिविटी, बोथ और नन? व्हाट डू यू थिंक इज कांस्टेंट? बेटा दे वोंट बी एनी मेंटी. मेंटी नहीं होगा बेटा अभी. Guys, see, you have to understand this graph very carefully. आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. The fine line gives you the yearly average. The bold line gives you the 11 साल का average, right? The fine line gives you the yearly average. The bold line gives you the 11 साल का average. अब अगर आप ईयरली एवरेज को देखो, देयर आर ह्यूज गैप्स, ह्यूज चेंजेस. इवन अगर आप 11 साल के एवरेज को देखो, इवन देन इट चेंजेस. ओके, इवन देन इट इज चेंजिंग. सो अर्थ टेम्परेचर इज चेंजिंग. डेफिनेटली वी कैन सी अर्थ टेम्परेचर इज चेंजिंग. Sun's activity is changing, definitely. Both, that is the correct answer. क्योंकि दोनों चीजें चेंज हो रही है. ठीक है. अगला क्वेश्चन. When do you think photosynthesis? Sir, their Rayleigh law states the scattered one wavelength, so the lower wavelength means more scattering. So how will lower wavelength be more readily available to the deep? Sir, green algae, red algae are found in the deepest strength. बेटा red wavelength is proportional to 1 upon wavelength. तो जिसका सबसे ज्यादा wavelength वो least scatter होगा ना बेटा जी, right? red का wavelength कितना है? 700, right? blue का wavelength कितना है? blue का 400. तो 400 का नैनोमीटर ज्यादा ना, तो आपका वो कम डिफ्रैक्शन और वो सब आपका स्कैटरिंग होगा. इसीलिए आपके जो रेड लाइट्स हैं
वो रेड लाइट्स रेड क्यों बनते हैं? दैट्स द रीजन। शाम को आपको आसमान वो ऑरेंजिश क्यों दिखता है? फॉर द सेम रीजन। ओके, ठीक है। हायर वेवलेंथ नहीं, लोअर वेवलेंथ नहीं मिलेगा बेटा। हायर वेवलेंथ मिलेगा, हाई क्वांटिटी ऑफ लाइट नहीं मिलेगा बेटा। इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, हाई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी बेटा। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। They are two different things. When I say wavelength, I am talking about which particular energy of light, right? When I am talking about intensity, कितना light, they are two different things. V is equal to f lambda, पढ़ा है ना हमने? V क्या था? Speed. F क्या है? Frequency. Lambda क्या है? हमारा wavelength. So higher frequency, lower lambda, right? Inversely proportional होते हैं. So red wavelength का वेवलेंथ ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, राइट? इट कैरीज लेसर एनर्जी, बट डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग के केस में वो स्कैटर कम हो। देखो रेड नीचे वाले को मिलेगा बट बहुत कम मिलेगा, इंटेंसिटी बहुत कम होगी। रिमेंबर देयर वर अ लॉट ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, नो डाउट कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस किक ऑफ होंगे बट बहुत कम, ठीक है। यू सेड एक्स वाज इन नैनोमीटर्स। बेटा सुनो 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 सुनो, गाइस 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 गाइस, व्हेन आई से, सुनो, सम्यक ठीक से नहीं समझा। नो 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 गाइस, सुनो सुनो सुनो, आई सेड व्हाट इज पीएआर? पीएआर इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब वो वेवलेंथ जो प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं। व्हाट इज दैट वेवलेंथ? 400 से 700, यानी व्हाइट लाइट। मैंने बोला व्हाइट लाइट नहीं लिख सकते, इसीलिए पीएआर बोला। 100, 200, 300 रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द पीएआर बेटा जी। दे रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी, नॉट द वेवलेंथ। दो अलग अलग चीजें बेटा जी, कंफ्यूज मत हो। एक्स एक्सिस पे पीएआर का इंटेंसिटी मेजर किया गया था, नॉट द वेवलेंथ। वेवलेंथ की क्वालिटी क्या है? इट्स पीएआर 400 to 700, यानी व्हाइट लाइट, ओके, बट उसका इंटेंसिटी हमने दिया था। देन दे शुड बी सीडी बेटा, उन्होंने इसीलिए तो यूनिट नहीं लिखा, राइट? दे डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज इन यूनिट्स राइट नाउ, ओके। इंटेंसिटी का जो भी यूनिट था, दे डिड नॉट बॉदर टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट, राइट? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थोड़ा कि हाँ इंटेंसिटी को क्वांटिफाई किया जा रहा है, ओके। अनुराग, टेलीग्राम लिंक is Sona Singh Unacademy, okay? Sona Singh Unacademy. Now when do you think photosynthesis would vary? Now we know that photosynthesis would vary in both the cases. Yellow line spike करेगा मतलब light increase होगा, लाइट इंक्रीज होगा का मतलब क्या है? यू हैव मोर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। रेड लाइन स्पाइक करेगा तो कैसे चेंज करेगा? डू यू थिंक फोटोसिंथेसिस वुड चेंज व्हेन यू चेंज द रेड लाइन? बेटा डू यू थिंक फोटोसिंथेसिस वुड चेंज इफ यू चेंज द रेड लाइन? कम ऑन, यस गाइस। हाँ सम्यक, थोड़ा सा यू हैव टू मतलब सी वही है, इट विल गेट बेटर विथ प्रैक्टिस। जैसे हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे विल अंडरस्टैंड कि किन चीजों से क्या समझना है, राइट? माइन्यूट इफेक्ट्स गाइस, वी कांट से माइन्यूट इफेक्ट्स। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? आज हमने सुबह भी ये डिस्कस किया था, देयर वुड बी ह्यूज स्प्रेड ड्रॉट्स एंड टेम्परेचर बंद होने से स्टोमटा बंद होने लगेंगे। स्टोमटा बंद होने लगेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के जगह पे ऑक्सीजन से कंबाइन करने लगेगा, ठीक है बेटा? सो गाइज यू हैव टू थिंक एज डीपर एज यू कैन गो।
फॉर्म एज मेनी कनेक्शंस एज यू कैन इन दीज क्वेश्चंस. आप जितने कनेक्शंस बना सकते हैं, प्लॉजिबल कनेक्शंस, उतने बनाइए. राइट, दैट इज द की टू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ओके, सो गाइज आई एम स्टॉपिंग हियर. मैं यहां पर रुक रहा हूं. वी हैव मोर क्वेश्चंस बट वी विल सॉल्व देम एज एंड व्हेन क्लासेस कम. कल इस हफ्ते का लास्ट क्लास है, सुबह फूड एंड न्यूट्रिशन. राइट, यहां पे विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटो, हीट्रो, फोटो, कीमो. We'll talk about them. We'll also talk about what food do we eat, food के components क्या होने चाहिए, essential, non-essential क्या होता है. We'll also talk about what is the FDA recommendation of various nutrients, what happens if we don't take those nutrients, and what is the relation between the food we eat and the food we create. So very important, food we eat and food we create. So it's something very fascinating जो आजकल हाल फिलहाल सालों में रिसर्च से आया है. We'll talk about that. ठीक है. So but based on the data, temperature towards end, so on average the effect should be minute. नहीं सम्यक see, कहाँ गया वो ग्राफ? Let me show you again. आप ईयर को भी देखो बेटा, कब से हमारा जो है ग्राफ इज मूविंग आउटवर्ड्स, जब से हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाका मचाया है. राइट सम्यक, जब से हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में धमाका मचाया है. वी हैव मोर फॉसिल फ्यूल्स, वी हैव मोर कार्बन बर्निंग. दैट इज व्हाई अच्छा मैंने अगले क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बट ओके ठीक है. सो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अचानक से ज्यादा टेम्परेचर क्यों बढ़ने लगा, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है. सर इन ह्यूमन बॉडीज आफ्टर डेथ वेयर डू मैगट्स कम फ्रॉम? बेटा अगेन दिस इज अ फेमस थिंग कॉल्ड, पहले लोग बोलते थे कि मैगट्स अपने आप आ गए थे, यू नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन और समथिंग, लाइफ अपने आप बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता. Maggots would come only when their gametes would be deposited or when their zygotes would be deposited. Now अब आप बोलोगे zygotes कैसे deposit हो जाएंगे? Good question. Guys, many of the times many vectors carry eggs of other animals. Maybe when we are talking about maggots, some sources जो होते हैं, maybe wind तो बहुत कम chance होगा, most probably some vector is carrying the eggs of these maggots there, right? क्योंकि insects हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, right? So maybe they are dropping off their zygotes or they are dropping off their gametes. ये check करना पड़ेगा कि gametes drop कहाँ से हो रहे हैं, but it is because of gamete droppings or zygote droppings, not because of simply coming out of. Okay, sir, are these maggots? नहीं. Rhizopus is a fungi. मैगट्स की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वो कीड़े, इंसेक्ट्स. राइट, मैगट्स आर कीड़ा बेटा, दे आर नॉट फंजाई. राइट, तो अगर कीड़े आ रहे हैं यानी उनके जाइगोट या एग्स कहीं ना कहीं से उड़कर आ रहे होंगे. उनके एग्स कई बार इंसेक्ट्स में इधर से उधर ट्रांसफर होते रहता है. बस ये ढूंढना है कि कौन इंसेक्ट ये काम करता है. ठीक है. So guys, I'm closing down for right now. I'll meet you people in 15 minutes with Rahul sir. ठीक है. So I'll meet you people in 15 minutes Rahul sir के साथ, and then we'll take our journey ahead. ठीक है. चलो guys, thank you so much. I will not say good night because अभी है एक और छोटा सा हमारा 20-30 मिनट का सेशन है. After that, bon weekend. चलो guys, take care and do attend कल का सेशन. ठीक है. Thank you guys.